حنیف عباسی کے لوگ آ کے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کے لیڈر ہے, کبھی دیکھا ہے آپ نے ان کو؟ جی ہم نے دیکھے, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے ملک کے لیے کیا لڑائی لڑی ہے اور ملک کے لیے کس طریقے سے لڑ رہے ہیں. یہ فرعون کی نسل ہے, فرعون کی ان کو میں کہتا ہوں تیسری نسل ہے, ٹھیک ہے. یہ پوری عمر اللہ پاک ان کو اس کو موت بھی نہیں نصیب ہو. عوام خان کے ساتھ ہے, اور جب غریب عوام آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کرتے. کہ عمران خان صاحب اور پرویز الہی صاحب کے مڈ میں تھوڑی سی ناراضگی فیل ہو رہی ہے. نہیں نہیں, ایسا کچھ بھی. ایک جذبہ ہے کہ بھئی ایمبولینس آئی ہے تو کارکن آگے بڑھ کے اس کو ایمبولینس کو گزرنے کا راستہ دیتا ہے. رانا صلی اللہ بھی کیا کر سکتا ہے. اوکے جی ناظرین, اس وقت ہم نواز شریف پارک کے یہاں پر موجود ہیں اور احتجاج ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے کارکنز کی طرف سے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سبرینہ جاوید صاحبہ, ایم پی اے ہیں جہلم سے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ کو مقصد پتہ ہے, ہم خان صاحب کی ٹائگریسز ہیں. پچھلے کئی برسوں سے ہم ان کے قافلے کا ایک حصہ ہیں, اور اس پہ ہمیں الحمدللہ فخر بھی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے بھی ہم نے 126 دن کے دھرنے میں خان صاحب کو اکیلا نہیں چھوڑا, اور آج بھی ہم خان صاحب کے دیکھیں رات کی اس پیر بھی ان کے کال کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے بیٹھے ہیں, اور ان کے لیے دعا گو ہیں. اچھا میڈم, جیسے کہ آپ ایم پی اے ہیں جہلم سے, تو آپ کی وہاں پر بھی تو رسپانسبلٹی ہے, آپ راول پنڈی پہلے ہی پہنچ گئی ہیں. نہیں, میری وہاں پر ہیں, لیکن میں اس وقت پاکستان ویمن ونگ کا جو ایک ہے سینٹر کا, اس کا میرے پاس عہدہ ہے, وائس پریزیڈنٹ ہوں, اس لیے مجھے یہاں پر رہ کر اپنی سروسز دینی ہے. اچھا ایک بات میں میڈم آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, وزیر اعلیٰ آپ کے ہیں پرویز الہی صاحب, تو ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اور پرویز الہی صاحب کے مڈ میں تھوڑی سی ناراضگی فیل ہو رہی ہے. نہیں نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں افواہیں جو ہیں ان کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. اب اور کچھ نہیں ملا, پہلے خان صاحب زخمی ہیں, ایک اور شوشہ لوگوں نے چھوڑ دیا, ایسا کچھ نہیں ہے. اور جہلم سے اور تمام اضلاع سے ہماری وقتاً فوقتاً ویمن ونگ کی جو ہے وہ خواتین آتی ہیں, کمل شوذب کے ساتھ جو ہے اظہار یکجہتی کرتی ہیں. یہاں ہماری فرح آغا ہیں, وہ کوارڈینیٹر ہیں ضلع پنڈی کی, تو ہم لوگ جو ہے سینٹر کے حوالے سے یہاں کام کر رہے ہیں. اچھا میڈم, ایک بات اور میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ ایم پی اے ہیں, چونکہ آواز اٹھا سکتی ہیں. ہم راول پنڈی میں آپ کے پی ٹی آئی کے کارکنز اور جو عمران خان صاحب سے پیار کرتے ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں, لیکن اس دن میں نے خود دیکھا کہ پنڈی کے حدود میں ہم لوگ تھے, اور وہاں پر بھی اسلام آباد کی پولیس آئی تھی اور کارروائی کر رہی تھی, شیلنگ کر رہی تھی. وہ شیلنگ کر رہے تھے اور ہم شیلنگ کھا رہے تھے, اور کیا کہہ سکتی ہوں, بس اتنا ہی کہوں گی. آپ یہ بتائیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے. دیکھیں جی, وہ اس کو خود نہیں پتہ کہ وہ کیا کہتا ہے, اور کیا مطلب میں اس کے بارے میں نہ بات کرنا پسند نہیں کروں گی, کیونکہ وہ قاتل انسان ہے. اس نے بہت سے ماؤں کے بچوں کو ختم کیا ہے, نشے کا عادی بنایا ہے. اللہ اس کو پوچھے گا. مطلب میں اپنا یہ ٹائم ضائع نہیں کر سکتی کہ اس کے بارے میں ایک لفظ بھی بولوں, اتنی نفرت ہے مجھے. صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ سے جو ایک طوفان ہے لوگوں کا, وہ منہ بولتا ثبوت ہے. میڈم میں ایک بات آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, ہمارے بزرگ رہنما اعظم سواتی صاحب, ان کو جب ہم نے روتے ہوئے دیکھا تو خدا کی قسم ہمارے بھی آنسو آئے, اور ہم نے اللہ کی طرف دیکھا کہ یا اللہ ہم اس بزرگ بندے کے سامنے کیسے کہیں, تو ہم پوری قوم شرمندہ ہیں. تو آپ کیا کہتی ہیں اعظم سواتی صاحب کے ساتھ, اور ایک سینیٹر, تو عام بندے کا کیا حال ہوگا؟ بس یہ اتنا دکھ اور تکلیف ہے کہ ہم سب شرمندہ ہیں. اور پرسنل لائفز کے بارے میں جو خواتین مردوں کے بارے میں جو کوئی بھی بات کہتا ہے وہ نہایت غلط ہے, اور پرزور مذمت کرتی ہوں. اور ایسا کلچر جو ہے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, جس کو ہمیں پاکستان سے نکالنا ہے انشاءاللہ. فوجی کی بیٹی, بیوی, ماں بھی ہوں. میں تو کبھی بھی نہیں چاہوں گی, میرے تو رگوں میں فوجی کا خون دوڑتا ہے. تو ہمارے بہت سے لوگوں نے قربانیاں دی, میرے والد نے جنگیں لڑی. فوج ایسی نہیں ہے, میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کروں گی. عوام کے لیے کیا پیغام ہے, عوام کو کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں اپنی عوام کو, پاکستانی تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آئیں, حقیقی آزادی میں حصہ بنیں. ہماری عمر گزر گئی, آنے والی نسلوں کے لیے ایک آزاد خود مختار پاکستان بنائیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ بنے گا. اکیلے عمران خان نہیں بنا سکتا, آپ لوگوں کو, ہم سب کو اس کا ساتھ دینا پڑے گا. بہت شکریہ. پی ٹی آئی کے رہنما ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اسپیشلی احتجاج کے بارے میں. جی آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ السلام علیکم. بس میں آپ کو اتنا کہوں گی کہ آپ دیکھ رہے ہیں, ہم تو
वुमेन विंग का ये कैंप 8 दिन से लगा हुआ है और आज क्योंकि रश ज़्यादा हो गया था तो इसलिए ये लोग सब भी इधर ही आ गए। आप यकीन माने कि कोई घर जाने को तैयार ही नहीं है, हमें लोगों को बुलाना नहीं पड़ रहा, खुद ब खुद लोग आ रहे हैं। और इस कदर यहाँ पे लोग चार्ज है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। अब आप ये देखें, खान साहब तो वहाँ बीमार पड़े हुए हैं ज़ख्मी हालत में, और लोगों का आलम आपने देखा है कि किस तरह से है कि वो इस कदर गुस्से में है ना कि वो कहते हैं कि जब तक खान यहाँ नहीं पहुँचते हम घरों को नहीं जाएं। अच्छा मैडम ये बताएं, राणा साहब हमेशा धमकियां देते रहते हैं और अब भी वो यही कहते हैं कि आपको 25 तारीख याद होगी, वो फिर दोहराएंगे हम। राणा साहब की तो अक्ल पे मुझे मातम करना आता है। मैं खान की एक आम वर्कर हूँ और आप यकीन माने मुझे इतना दुख होता है जब वो इस तरह की बेहुदा बातें करते हैं। और वो उनकी जो इंग्लैंड जाके बैठी हुई है, भाई उनको देखो कि यहाँ मुल्क गुर्बत में मर रहा है, हर चीज़ उन्होंने महंगी कर दी है और वो खुद जाके वहाँ याशियाँ कर रही है। राना सनाउल्लाह उसको बुलाए और उस पर शेल चलाए ताकि उसको पता चले गरीबों का दुख क्या होता है। मतलब जो गरीब आवाम है, हम जैसे आम लोग, इन पे शेल चला के क्या मिलेगा? मुझे एक बात बताएं, इंसाफ मिल पाएगा इमरान खान साहब को? देखें इनकी अपनी गलतियाँ हैं। अब इन्होंने खान के साथ ऐसी हरकत, ये दूसरी दफ़ा हुई है, आपको याद है पहले भी वो ऊपर से गिर गए थे, तो अब तो लोग अंदर जाने को तैयार ही नहीं है। और आपको पता है कि जिसके साथ अवाम हो जाती है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अब अवाम खान के साथ है, और जब गरीब अवाम आपके साथ होती है तो आप कुछ भी नहीं कर पाते। कितनी पब्लिक जमा करने की एक्सपेक्टेशन रखती हैं? देखें मुझे इतना पता है कि इस वक्त पिंडी जो है ना, वो घरों में अंदर जाने को ही तैयार नहीं। ये लोग कहते हैं आप लोग क्या कर रहे हैं, रास्ता बंद करें। यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट्स हैं, मजदूर तबका है। आपको पता है 2 दिन से यहाँ पे भी उसके हनीफ अब्बासी के लोग आके कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब तो नहीं, हमें क्या पहचान है कि कौन सा वर्कर किसका है। ये इतने बड़े क्राउड में आप इस तरह के इल्ज़ामात देते हुए अच्छे नहीं लगते। जबकि 2 दिन पहले मरियम का और हिना भट्ट का जो पैगाम था, उससे साफ जाहिर होता है कि ये घटिया हरकत इन लोगों ने की है। बहुत शुक्रिया बेटा, आप भी यहाँ पर आई हैं, आप किस मकसद के लिए आई हैं? आप इमरान खान साहब को जानती हैं? जी मैं जानती हूँ, वो हमारे लीडर हैं। आपके लीडर है, कभी देखा है आपने उनको? जी हमने देखे, और हमने ये भी देखा कि उन्होंने मुल्क के लिए क्या लड़ाई लड़ी है और मुल्क के लिए किस तरीके से लड़ रहे हैं, हमने ये भी देखा। इमरान खान साहब से मिलने की आपको विश है कि कभी मिलें और आप भी इमरान खान साहब से ऑटोग्राफ लें? मैंने टाइगर फोर्स में काम किया है, तो मुझे खान साहब ने बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दिया है, और उन्होंने जो सर्टिफिकेट दिया था उस पर खान साहब के साइन ऑलरेडी मौजूद है और मेरे पास वो सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है। वाह, अच्छा ये बताएं बेटा, जब इमरान खान साहब पर ये न्यूज़ हमने देखी कि इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हो चुका है, उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या थी, ज़रा थोड़ा सा बताएं। यही थी, मतलब बहुत परेशानी हुई थी कि हमारे जो लीडर हैं, मतलब पूरी दुनिया में एक ऐसे ही एक ही लीडर है जो इस मुल्क को जो है वो बेहतर तरीके से चला सकते हैं और मुल्क का सोच सकते हैं, गरीब का सोच सकते हैं। इसके अलावा तो हमें किसी से तवक्कुआत नहीं है। इमरान खान के लिए किस तरह की कुर्बानी दे सकती हैं आप? हम जाने तौर पे भी तैयार हैं और अपने मुल्क के लिए हर तरीके से अपने लीडर के साथ हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे? राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हम आपको आने नहीं देंगे और इमरान खान साहब बज़िद हैं कि मेरी लॉन्ग मार्च कामयाब होगी, तो आप क्या कहते हैं? सर आपके सामने राणा सनाउल्लाह कुछ भी नहीं कर सकता, ये अवाम के हौसले आपके सामने हैं। हमारी जो ख़वातीन बैठी हैं उनके हौसले का मुकाबला वो नहीं कर सकता, तो ये जेंट्स का क्या मुकाबला करेगा? 8 बजे की अवाम बैठी है और पुरसकून से बैठी हुई है, कोई इंतशार नहीं। एम्बुलेंस आ रही है, रास्ता जा रहा है, एम्बुलेंस को ऐसे रास्ता देते हैं जैसे कि एक जज्बा है कि भाई एम्बुलेंस आई है तो कारकुन आगे बढ़ के उसको एम्बुलेंस को गुजरने का रास्ता देता है। राणा सनाउल्लाह भी क्या कर सकता है? उसको कितनी बातें सुनने को मिली हैं, ये तो तब पता चलेगा जब इमरान खान साहब पिंडी में तशरीफ ले आएंगे, फिर उसको पता चलेगा वो ख़वातीन का मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी तो बड़ी दूर की बात है। बहुत शुक्रिया सर। आप क्या कहना चाहेंगे? और राणा सनाउल्लाह साहब का पैगाम है कि इनको हम आने नहीं देंगे क्योंकि मेरे पास दवाई है, इनके लिए मेरे पास इलाज है, जब आप आएंगे तो आप सबको कुचल दिया जाएगा। राणा सनाउल्लाह साहब को ये कहता हूँ, उन्होंने जितने भी हथकंडे इस्तेमाल करने उन्होंने तो कर लिए ना, तो अभी आवाम की बारी है। आवाम इंशाल्लाह जो कुर्बानी दे रही है
बारिश में भी हवाम हिली नहीं है, लेकिन मुलाजम सो पड़े। मुलाजम को अपनी ऐसी निकाली है, लेकिन हवाम उधर की उधर ही खड़ी रही है। उसको और काम क्या बनता है? राणा सनाउल्लाह का ये गलत से गलत हथकंडे इस्तेमाल करेगा। इनकी हुकूमत का और काम क्या है? खूनी है, खूनी लोग हैं, ये खून करने वालों में से है। देखिए कितने उन्होंने हालात उन्होंने ख़राब किए हैं। खान साहब के ऊपर भी फायरिंग करवाई है। इधर किस किस का नाम लूँगा? ये तो है ही खूनी है, ये इनकी ज़ात ही खून से पल रही है। जब हमने मौजूदा सेनेटर साहब की आज़म स्वाति साहब की वो वीडियो देखी जिसमें वो रो रहे हैं, उनके आंसू आ रहे हैं, यकीन कर लें मैं खुदा की कसम मैंने जब वो वीडियो देख रहा था तो मेरे अंदर एनर्जी ख़त्म हो गई थी, ताकत ख़त्म हो गई थी, और वो वीडियो मैंने पूरी नहीं देखी। पूरी कौम शर्मिंदा है। आप क्या कहते हैं कि ये क्या हो रहा है कि एक सेनेटर जो है उसकी इज़्ज़त महफूज नहीं है, तो आम आवाम का क्या होगा? मैं तो सबसे पहले उनके बारे में, सेनेटर साहब के बारे में यही कहूँगा, आज़म स्वाति साहब के बारे में हमारे लिए काबिल एहतराम है। ठीक है, जब ये वीडियो मैंने ये जो उनकी क्लिप्स देखी हैं, पहले तो कुछ टाइम के लिए ना मैं खामोश होकर सुन रहा था और देख रहा था कि ईमान से एकदम बंदा सुन सा हो सकता है ना, बिल्कुल हैंग, ब्रेन उसका बिल्कुल हैंग ही हो जाता है सुनने के बारे में। उसकी साइड पे देखे हम उनके पोतों की जगह पे हैं। मैंने जब ये चीज़ें सुनी हैं ईमान से कि ईमान गुवारा ही नहीं खाता कुछ ऐसी बात इनसे करूं। ये लोग किस किस की वीडियो बनाएंगे? इनकी वीडियो पड़ी हुई है। राणा सनाउल्लाह पहले अपनी बेटी को जाके देख लो कि वो बारों में नाचने वाली है। वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन हम फिर भी खातून का एहतराम करते हैं। मैं कहती हूँ किसी की भी बेटी होगी, ठीक है, हम लोग वो सोशल मीडिया पे उसको फैलाने वालों में से नहीं है। क्यों? कि हमारे घर में माएँ बहनें हैं। लेकिन पहले तो अपनी बेटी को ये खुद ही अनाउंसमेंट करे कि बहुत प्यारी नाचती हैं। ये इनके भी सब्र करें, इनकी भी वीडियो आनी है तो ये अपनी वीडियो के लिए नहीं देख ली, इंतज़ार करते रहें, उनकी भी आएगी। अगर किसी के ऊपर अगर कोई बंदा पत्थर मारता है, कीचड़ उछालता है, तो पहले अपने आप को भी देखना चाहिए। ये उनके लिए कुएं खोद रहे, खुद गिरेगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको गिराएगा। ये फ़िरौन की नस्ल है। फ़िरौन की इनको मैं कहता हूँ तीसरी नस्ल है। ठीक है, ये पूरी उम्र अल्लाह पाक इनको इसको मौत भी नहीं नसीब होगी। ये जो कर रहा है इसको मौत नसीब हुई तो मेरा नाम अनायत है, मोहम्मद एजेंसी का रहने वाला हूँ, इस्लामाबाद में मेरी रहश है। तो मैं अपना आईडी कार्ड भी इंशाल्लाह, मैं अपना नंबर भी बताऊंगा कि इसको मौत भी नसीब नहीं होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।